kids, welcome to today's maths class and today we'll do data handling. What is data? Data means any information जिसको हम इस फॉर्म में या नंबर्स जिसको इस फॉर्म में अरेंज करें कि जिससे हम कोई इन्फॉर्मेशन ले सकें, दैट इज डेटा. क्लियर? वार्म अप एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. बोलू राम एंड ढोलू राम आर टू मिल्कमैन. दो मिल्कमैन हैं. ढोलू मिक्सेस वाटर इन द मिल्क वाइल भोलू सेल्स प्योर मिल्क. भोलू जो है वो प्योर मिल्क सेल करता है और ढोलू क्या करता है, उसमें वाटर मिक्स कर देता है. अमाउंट ऑफ मिल्क सोल्ड बाय बोथ द वीक इज गिवन. आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. यहाँ पे दे रखा है कि दोनों वीक में कितना जो मिल्क है वो सेल करते हैं. ढोलू राम मिल्क सेल इन द वीक. सो ऑन मंडे ढोलू सोल्ड डैश लीटर मोर मिल्क देन भोलू. सो अगर आप देखें मंडे का इसका 55 एंड भोलू का 60, उसका ज़्यादा है, कितना है, 5 ज़्यादा है. क्लियर? So, in this chapter we shall learn to read and interpret. Means कैसे हम डेटा को पढ़ेंगे या किसी इन्फॉर्मेशन को कैसे रीड करेंगे. Given bar graph based on the date, select on the day and day aspect of life. Let us look at the following information. A traffic at a busy crossing in Delhi was observed by the traffic police on the particular day. आपको पता है दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है, तो यही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ट्रैफिक पुलिस ने ऑब्जर्व किया कि कितना ट्रैफिक रहता है. द अप्रॉक्सिमेट नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग एवरी आवर हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग टेबल. सो यहाँ पे आपको दे रखा है टाइम इंटरवल आर में और नंबर ऑफ व्हीकल. लाइक 8 to 9 में 1000 व्हीकल, 9 to 10 1200 व्हीकल. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक टेबल में इस तरीके से अरेंज की है. इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस अबव टर्म इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल डेटा. इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा. To represent this date in the meaningful way, it is shown in the picture or the graph. And information in picture or graph, that is called picture representation or graph of the day. In the previous class, you have learned about the pictograph. आपने pictograph के बारे में पढ़ा था. अगर information को picture के form में represent करते हैं, that is called pictograph. And bar graph. Pictograph have many limitations. Bar graph is better representation of data instead of picture symbols. It is easy to draw bar graph representing the given number of vehicle as shown. So यहाँ पे 2 axis है. हमने यहाँ पे ये जो axis है यानी horizontal axis, यहाँ पे हमने लिया है time interval in hour and यहाँ पे vertical axis पे लिया है number of vehicle. So इस तरीके से हमने जो भी information है उसके according हमने ये bar graph draw किया. अब हम इसे easily information read कर सकते हैं कि 8 to 9 के बीच में कितने vehicles आए या किस टाइम पे कितने vehicles आए. So bar graph showing the number of vehicle passing busy crossing of Delhi at different time interval on the particular day. The representation of data in this form with the help of the bars in the diagram is called a bar graph or bar chart. इसको हम कहते हैं bar graph या bar chart. The interval has been arranged horizontally and the bars are vertical. These bars can be shaded or colored, but bars are vertical bar graph. If the bar graph is drawn in such a way that the bar are horizontal time interval as shown vertically, the graph is called horizontal bar graph. So हम अगर vertically करेंगे तो vertical bar graph हो जाएगा, horizontally करेंगे तो horizontal bar graph. Generally vertical bar graph for information are shown. So bar graph is a pictorial representation of numerical data by the number of bars. Rectangle of uniform width created horizontally or vertically with equal spacing. जो उनकी विड्थ होगी वो इक्वल होगी, उनके बीच का स्पेस जो होगा इक्वल होगा. ईच रेक्टेंगल और बार रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल डेट एंड देयर आर एज मेनी बार एज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द न्यूमेरिकल डेट. द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट द सूटेबल स्केल कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल डेट. मीन्स जितनी वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उनकी हाइट होगी. नेक्स्ट, रीडिंग ऑफ बार ग्राफ. किस तरीके से हम बार ग्राफ को रीड करेंगे? सो यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रॉम द वर्टिकल बार ग्राफ. द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ vehicle passing through the busy crossing at different time interval on the particular day. The time break up is shown on the horizontal line. हमने horizontal line पे क्या दिखाया है? जो time break है. Clear? और जो height of the bar graph है वो किसको represent करती है कि vehicle passing through the crossing during the time interval corresponding to the bar. Next, interpretation of the bar graph. Interpretation of the bar graph means the conclusion we can draw from it. Means क्या क्या हम उससे conclusion निकाल सकते हैं. Following conclusion can be drawn from the above bar graph. The number of vehicle passing through the particular crossing of Delhi at different interval of particular day. When is the hourly traffic maximum? कब था? तो हमने देखा कि maximum traffic था between 9 to 10 hours. When is the hourly traffic minimum? That is between 1 to 2 hours. Clear? Example लेते हैं.
द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री इन द लास्ट 6 years आर गिवन। सो ईयर दे रखा है 6 years में एंड नंबर्स ऑफ कार दे रखी है, हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने नंबर ईयर्स ले रखे हैं एंड यहाँ पे नंबर्स ऑफ कार, और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ये जो बार्स हैं वो ये बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एक सूटेबल स्केल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ये बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 15.1। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लास 5th आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय बार ग्राफ। तो आपको क्लास दे रखी है, अलग अलग क्लास है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो आप एक सूटेबल स्केल लेंगे एंड 2 एक्सिस, यहाँ पे आप क्लासेस ले लेंगे एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, पाई चार्ट। A pie chart is display date information statistics in easy and read pie size format with the varying slice size telling you how much one date element exists. The bigger the slice, the more that particular data was gathered. Example लेते हैं। पाई चार्ट में हम एक सर्कल की शेप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। द पाई चार्ट बिलो शो द परसेंटेज ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय द 800 स्टूडेंट टू कम टू स्कूल। हाउ मेनी स्टूडेंट इन द स्कूल कम टू स्कूल बाय बाइसिकल। आपको यहाँ पे टोटल 800 स्टूडेंट्स का दे रखा है। बाइसिकल से देखिए 45% मीन्स 800 का 45% 360 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 15% स्टूडेंट वॉक करके आते हैं, सो 100 - 15 85%, सो 85% ऑफ 800 दैट इज 618 स्टूडेंट। 30% स्टूडेंट्स कम बाय बस एंड 10% बाय कार। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 30% 40, 800 का 40% 320 स्टूडेंट्स। Next, practice time 15.2. The pie chart below shows the percentage of the world population each continent. The present world population is about 7 million. How many people live in Africa? So, Africa में अगर आप देखेंगे, अफ्रीका अगर आप देखेंगे इसमें तो 15%, तो इसका 15% जो है वो अफ्रीका में रहते हैं। हाउ मैनी मोर पीपल लिव इन एशिया एंड अफ्रीका, तो आप क्या करेंगे? एशिया का नंबर निकालेंगे और अफ्रीका का और कंपेयर कर लेंगे। किस? क्लियर? तो इस तरीके से आप पाई चार्ट से इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइन ग्राफ। अ लाइन ग्राफ ऑल्सो नोन द लाइन चार्ट और लाइन प्लॉट इज कॉमनली ड्रॉन टू शो द इंफॉर्मेशन दैट चेंज ओवर टाइम। यू कैन प्लॉट इट विद सेवरल पॉइंट लाइंड अप। कैसे ड्रॉ करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं। ऑब्जर्व गिवन डेट एंड प्लॉट द लाइन ग्राफ। सोल्यूशन वर्टिकल एक्सिस, ये हमने स्केल ली है। 1 बॉक्स 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1 बॉक्स 30 मिनट को एक्सप्रेस कर रहा है। टाइम हमें गिवन है एंड डिस्टेंस गिवन है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने टाइम लिया है। सो 8 o'clock पे जो है डिस्टेंस है 0, तो हमने यहाँ पे 0 पे मार्क कर दिया। 8:30 पे 10, सो 8:30 पे 10 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट, तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट मार्क करेंगे, ऑन को ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से एक लाइन में आएंगे। सो दैट इज द लाइन ग्राफ। नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 15.3। द टेबल शोन सोम्स वेट इन किलोग्राम फॉर 5 months। ऑब्जर्व द डेट एंड इंटरप्रेट लाइन ग्राफ। तो आपको क्या करना है? 2 एक्सिस लेने हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप मंथ्स ले लेंगे एंड यहाँ पे वेट। तो जो भी सूटेबल स्केल आप लेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पे, उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स मार्क करेंगे एंड उनको ज्वाइन करेंगे एंड लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। द अदर नेम ऑफ द सर्कल ग्राफ इज दैट इज पाई चार्ट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ ड्रॉ करने हैं, किस तरीके से हम उसे रीड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है।